एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनव्यव्यतिरेकाभ्यं यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अनुवाद वो तो गुजरात का है। एतावत आ सुधी एव नक्की जिज्ञासम जिज्ञासा करनी જોઈએ तत्व परम सत्य जिज्ञासुना जिज्ञासुए शिष्य आत्मनः आत्मानु अन्वय प्रत्यक्ष रीते व्यतिरेकाभ्यम परोक्ष रीते यत जे कई शात होई सके ते सर्वत्र સ્થળ અને કાળમાં બધે સર્વદા બધી જ પરિસ્થિતિમાં। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जे मनुष्य सर्वोपरि परम सत्य परमेश्वरने जानवानी जिज्ञासा राखे छे तेणे અત્યંત નિશ્ચિતપણે બધી જ પરિસ્થિતિમાં સર્વ દેશ અને કાળ તથા પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે અહીં સુધી શોધ કરવી જોઈએ। તો છેલ્લા 4 સેશન થી આજે 5મું સેશન ચાલે છે। આ શ્લોકનો ભાવાર્થ બહુ સુંદર છે। આચાર્ય ઘણી બધી કોમેન્ટ્રી કરી જેમ પ્રભુપાદે આપણે એકદમ સાર આપ્યો છે। तो आपने गई काल सुधी જોયું તો અપીચી તો સુદરાચાર્ય ભજતે મામ અનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્યક વ્યવસ્થિત મામિકાર વિપાશ્ય ये અપીચુ સ્વપાપયોને સ્ત્રી વૈશ્ય તથા સૂત્રો અપી યાંતિ પરાંગતિ। તો આપણે ગઈ કાલ અત્યાર સુધી જોયું હતું। હવે આપણે આગળ જોઈશું। જે મનુષ્ય સંપૂર્ણ રીતે जो मनुष्य संपूर्ण रीते पापी होय जो मनुष्य संपूर्ण रीते पापी होय छतां पण जो ते योग्य मार्गदर्शन हेठळ भगवाननी अनन्य भावे दिव्य प्रेममय भक्ति सेवा करे तो निसंदेह ते पूर्ण साधु मानवो જોઈએ। અને ગમે તે વ્યક્તિ પુરુષ હોય સ્ત્રી હોય પતિ સ્ત્રી હોય કે મન બુદ્ધિ શુદ્ધતા વેપારી હોય તેનાની માટે અધમ હોય તો પણ જો તે સંપૂર્ણ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ઉત્સાહથી ભગવાનના ચરણકમળનો આશ્રય લે તો ભગવાન પાસે સ્વધામ જવા માટેની જીવનની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે। આ ખરા દિલનો ઉત્સાહ એકમાત્ર યોગ્ય છે જે જીવનની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ તરફ દોડી જાય છે। અને જ્યાં સુધી આવી સાચી ઉત્કંઠા જાગૃત ન થાય ત્યાં સુધી लौकिक रीते पवित्र के अपवित्र विद्या अविद्या वच्चेनो भेद रहे छे। अग्नि हमेशा अग्नि ज होय छे अने तेथी जो कोई जानता के अजाणतानो स्पर्श करे तो ते भेदभाव राख्या विना तेने पोतानी रीते ज काम करशे। भेदभाव राख्या विना ते पोतानी रीते ज काम करशे। नियम ए छे के हरि हरंती पापानी दुष्ट चित्तेरपि स्फुटम। सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर જેવી રીતે સૂર્ય તેના શક્તિશાળી કિરણોથી સર્વત્ર પ્રકાશના ચેપને જંતુરહિત કરે છે તેમ ભક્ત તેના સર્વ પાપ કર્મજનિત દોષોથી શુદ્ધ કરે છે। તેમ ભક્તને તેના સર્વ પાપજનિત દોષોથી શુદ્ધ કરે છે। સંસાર સુખ आकर्षण भगवानना शुद्ध भक्तने विचलित करतुं नथी। शास्त्रोमां एवा सैकड़ों हजारों वचन छे। आत्मा रामश्च मुनियः जीवन मुक्त आत्माओं पण भगवाननी दिव्य प्रेममय भक्तिથી आकर्षाय छे। केचित केवल्य भक्त्या वासुदेव परायणा श्रवण અને કીર્તન કરવાની થી મનુષ્ય ભગવાન વાસુદેવનો મહાન ભક્ત થઈ જાય છે। न चलती भगवत पदार विंदा वल नियमिसा अपि स
વૈષ્ણવાગ્રય, જે મનુષ્ય ભગવાનના ચરણ કમળમાં આશ્રયમાંથી ક્ષણ માટે પણ ચલિત થતો નથી, તેને સર્વશ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવ જાણવો જોઈએ. ભગવત પાર્ષદતા પ્રાપ્ત મત સેવયા પ્રતિતે શુદ્ધ ભક્તનો ભગવાનનો સંગ પ્રાપ્ત કરવાની ખાતરી હોય છે. શુદ્ધ ભક્તને ભગવાનનો સંગ પ્રાપ્ત કરવાની ખાતરી હોય છે અને તેથી તે ભગવાનના દિવ્ય પ્રેમમય ભક્તિમાં નિત્ય અનુરૂપ રહે છે. તેથી પૃથ્વી સર્વખંડોમાં, બધા જ ગ્રહોમાં, બધા જ બ્રહ્માંડોમાં ભગવત ભક્તિ તથા ભક્તિ યોગ પ્રચલિત છે. શ્રીમદ ભાગવતમ તથા અન્ય શાસ્ત્રોમાં તેનું વચન છે કે સર્વત્ર એવા ભગવાનના સર્જનના દરેક ભાગમાં ભગવાનની સેવા બધી જ ઇન્દ્રિયો થકી અથવા કેવળ મન થકી પણ થઈ શકે છે. દક્ષિણ ભારતના બ્રાહ્મણે કેવળ મનોબળથી જ ભગવાનની આરાધના કરી હતી. તેણે પણ ભગવાનનો વાસ્તવિક સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો. જે ભક્ત તેની કોઈ પણ એક ઇન્દ્રિયને સંપૂર્ણ રીતે ભક્તિમય સેવામાં પૂરવી દે છે, તે ખાતરીપૂર્વક સફળતા મેળવે છે. ભગવાનની સેવા કોઈ પણ પદાર્થ માટે થઈ શકે છે. પત્રમ, પુષ્પમ, ફલમ કે થોડા જળથી પણ વિશ્વમાં સર્વત્ર સુલભ છે અને વિના મૂલ્યે મળતા સામાન્ય પદાર્થો વડે પણ સેવા થઈ શકે છે. અને એ રીતે વિશ્વભરમાં જીવો દ્વારા ભગવાનની સર્વત્ર સેવા આરાધના થઈ શકે છે. તેમની લીલા વિશે શ્રવણ, કીર્તન અને વાંચન કરવા માત્રથી તેમની સેવા થઈ શકે છે. રીડિંગ કરવું બી ભગવાનની સેવા છે. તેમને ભાવપૂર્વક ચાહીને તેમનો અંગીકાર કરીને પણ તેમની સેવા થઈ શકે છે. ભગવદ ગીતામાં એમ પણ કહ્યું છે કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ ભગવાનને અર્પણ કરીને સેવા કરી શકે છે, મનુષ્ય શું કરે તેનો સવાલ નથી. સામાન્ય રીતે મનુષ્ય કહી શકે છે કે તેઓ જે કંઈ કરે છે તે સર્વ ભગવાનની પ્રેરણાથી જ થાય છે, પરંતુ એમ કેવું પૂરતું નથી. માણસે વાસ્તવિક રીતે ભગવાનના સેવક તરીકે કામ કરવું જોઈએ. ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કહે છે, યત કરોષિ યદ અસ્નાસી યજુ હોતિ દદાતિ યસ યત તપસ્યતિ કૌંતેય તત ગુરુ મદર્પણમ. તમારી ઈચ્છામાં આવે તે કે સરળતાપૂર્વક તમે જે કંઈ કરો છો તે કરો. તમે જે કંઈ ખાઓ છો, જે કંઈ પણ યજ્ઞ કરો છો, જે કંઈ પણ તમે દાન આપો છો, એ જે કંઈ પણ તપનું જે અનુષ્ઠાન કરો છો, એ બધું તેમને ભગવાન માટે કરો. તમે ભગવાન માટે કરો. જો તમે કોઈ ધંધો વેપાર કરો અથવા કોઈ નોકરી સ્વીકારો તો ભગવાન વતી કરો. તમે જે કંઈ ભોજન કરો તે ભગવાનને અર્પણ કરીને કરો અને ખાતરી રાખજો કે તે ભગવાન પોતે જમ્યા પછી પાછું આપશે. તેઓ સંપૂર્ણ પૂર્ણ છે અને તેથી ભક્તના પ્રેમને કારણે ભક્તે જે કંઈ અર્પણ કર્યું હોય તે આરોગી લેશે, પરંતુ પ્રસાદ તરીકે ભક્તને તે પાછું આપી દેશે. જેથી જે કંઈ ભક્ત ખાઈને ભક્ત સુખી થઈ જશે. બીજા શબ્દોમાં કહી શકાય કે ભગવાનના સેવક થાઓ અને ભગવત પરાયણ જીવન જીવી અંતે ભગવાન પાસે નિધામ પાછા જાઓ. બાકીનો આપણે ક્યારે લઈશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનંજન્ય શલાકયા ચક્ષુર્મિલિતેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મયા ચતાતિ સ્વપ્રાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રી યુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાર્વજાતમ સર્વનાથાંતિકમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ રાધા કૃષ્ણ પાદામ સત્વમ સાક્ષાત્. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रमाण हरि. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.
તો બહુ સુંદર તાત્પર્ય છે. શું કહે છે? ગઈકાલે આપણે જોયું કે આ 4 શ્લોક કોણ બોલે છે? ભગવાન સ્વયં બોલે છે. મેં ગઈકાલે સમજાવ્યું કે આ 4 શ્લોક ભગવાન સ્વયં બોલે છે ને ભગવાન જ ભાગવત મીન્સ ભગવાન સ્વયં બોલે છે આ 4 શ્લોક દ્વારા. અને એમના પુત્ર નારદ મુનિને આપે છે અને નારદ મુનિ એનો વિસ્તાર કરે છે અને પરીક્ષિત એના શિષ્ય વ્યાસદેવને આપે છે. તે ભાગવતમ કેટલા હજાર શ્લોકમાં છે? 18,000 શ્લોકમાં આપણી પાસે અવેલેબલ છે. અને પણ વધારે પડતું દેવલોકમાં છે. ત્યાં કેટલા લાખ શ્લોક છે? 1 લાખ શ્લોક છે. તો આ શ્લોકમાં સાર આપે છે કે ભગવાનની ભક્તિ એકમાત્ર ઉપાય છે. આ જગતમાં આપણે જો ભગવાનની ભક્તિ સિવાય કંઈ માંગીશું ને તો આપણે ભવબંધમાં ફસાઈ જઈશું. 3 દિવસ પહેલા ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજનો પ્રાગટ્ય થયો હતો. પ્રાગટ્ય દિવસ મનાવ્યો આપણે. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ એક બહુ સુંદર વાર્તા કરે છે. आपकी मम्मी को समझ में आएगा? हिंदी बोलो, हिंदी बोलो, हिंदी में बोलता हूँ. तो जो भक्ति सिद्धांत महाराज थे उन्होंने बहुत सुंदर बात बताया. उन्होंने बताया कि इस जगत में भगवान के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा कुछ भी मांगते हैं ना तो हम भवबंधन में फंस जाएंगे. इस जगत में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कमी है तो किसकी? भगवान की भक्ति की, भगवान की सेवा की. तो हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? जनरली किसी का जन्मदिन होता है या किसी का होता है तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं. या हमारे जो भक्त नहीं है तो वो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो क्या आशीर्वाद देते हैं? मुझे बताइए आप लोग क्या आशीर्वाद देता है? यदि वत्सल प्रभु आप अपने पिताजी या आपके दादा से आशीर्वाद देते हैं, प्रणाम करते हैं तो क्या आशीर्वाद देते हैं? सच बताओ. बनी गनी ना आगे. बस बनी गनी से आगे बढ़ो और खूब कमाओ. यस, खूब कमाओ. एग्जैक्टली प्रभु, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जीवन का ध्येय क्या है. हम देखते हैं कि कितने सारे पढ़े लिखे हुए भी बेकार बैठे हैं क्योंकि हमारा मुख्य दुख ही नहीं पता है कि हमारा मुख्य दुख क्या है. जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये हमारे 4 दुख है. बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार माता के घर में जाना पड़ता है, न चाहते हुए भी हमें दुख आते हैं. कोई चाहता है? नहीं चाहता, फिर मृत्यु आता है. निश्चित समय पर मृत्यु आएगा. तो जिसका जन्म हुआ जातस्य ही ध्रुवो, तो जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है. लेकिन अज्ञान के वश हम क्या बोलते हैं? खूब खूब जियो. कैसे जिएंगे? हम जाने से पहले, यहां आने से पहले हमारा रिटर्न टिकट कंफर्म करवा के आए हैं. हमारा भाग्य लिखा हुआ है कि हम इतने साल में मरने वाले हैं. सही है गलत है? हम कहीं जाते तो रिटर्न टिकट बुक कर देते हैं ना कि इस दिन जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम वापिस आ जाएंगे इस दिन. हाँ, तो यहां आने से पहले हमारा बुक फाइनल है. तो जन्म होता है, उसका मृत्यु होता है. उसमें क्या होता है? जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा आता है. ना चाहते हम कोई बूढ़ा होना नहीं चाहते. अभी हमारा भौतिक लोग देखते हो कितने साल हो गए आपके? 50 साल. और सिल्वर जुबली मनाएंगे, 50 साल हो गए, पूरे हो गए. हाँ, अभी मनाओ. मूर्खता है ना. इस दिन मैं इस जगत में आया हूं. महाराज बताते हैं कि इस दिन मैं इस जेल में आया था. ये जेल नहीं तो क्या और क्या है? ये जेल ही है ना. तो मूर्खतावश हम सोचते हैं कि मैं इस जेल में इस दिन को आया था, इसलिए आज मैं मनाऊंगा, सेलिब्रेट मनाऊंगा, केक काटेंगे. पागलपन है. हमारे लक्ष्य की ओर जाने में हमारे 1 साल और कम हो गया. हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं, मनुष्य जीवन मिला है, जिस कार्य के लिए भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हम मल मूत्र की कोठरी में जब थे तब बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि हमें निकाले, मैं भगवान में आपकी सेवा करूंगा, और निकलने के बाद सब भूल जाते हैं, माया पकड़ लेती है और हम हमारा जो ध्येय है वो भूल जाते हैं। जैसे बिजनेसमैन है, जो कोई काम से हम बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हम जो खासकर हम जो बिजनेसमैन है, हम लोग कहीं कहीं बाहर जाना पड़ता है उगरानी के लिए, तो हम जाते हैं ट्रेन से जाते हैं कि भाई आज अगस्त क्रांति से जाना है, कल सुबह दिल्ली उतरना है और रात को वापस अगस्त क्रांति से बैठ के सूरत वापस आना है। तो हम जाते हैं और सुबह सुबह दिल्ली उतरते हैं 10 बजे, और हम क्या क्यों आए हैं यहाँ गए दिल्ली कि भाई कलेक्शन करना है, हमें हमारा जो कार्य है वो करके वापस घर जाना है। लेकिन ट्रेन पे उतरने के बाद हम सोचते हैं कि टैक्सी मंगवाओ, अभी टैक्सी वाला बोले टैक्सी आई, बोले एसी नहीं है, हम एसी टैक्सी लेके आओ, हमें ये टैक्सी में नहीं जाना है, मैं बड़ा आदमी हूँ तो मैं टैक्सी करूंगा, बड़े टैक्सी करूंगा एसी वाला, अभी एसी टैक्सी नहीं है तो वापस भेजिएगा, दूसरी टैक्सी लेके आ, मैं नहीं आऊंगा इसमें एसी वाली। फिर होटल पे जाते हैं, होटल पे जाके बोलेंगे कि मुझे एसी रूम चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो आधा दिन ऐसे ही चला जाएगा। फिर कुछ और खाना खाने जाएंगे, और ये नहीं ऐसे नहीं मुझे ऐसे 5 स्टार वाला खाना चाहिए वो चाहिए, तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा और शाम को ट्रेन बैठ के वापस आना है। तो हम जो कार्य के लिए गए वो कार्य तो हुआ ही नहीं। बुद्धिशाली व्यक्ति क्या करेगा कि जिस कार्य के लिए मैं गया हूं उसको पहले खत्म करो, फिर बाद में देखेंगे, जब आएंगे दूसरी बार घूमने तब देखेंगे, अभी मैं जो कार्य के लिए आया हूं उसको पूरा करो। तो दिल्ली उतरेगा, जो भी टैक्सी मिली, रिक्शा मिली, जैसे भी मिला वहां जहां से कलेक्शन करना वहां पहुंच जाएगा। वो चिंता नहीं करेगा कि आज मैं कौन सी टैक्सी में आया हूं, क्या खाऊंगा, नहीं, मेरा जो कार्य करने आया मुझे वो करना है, बाद में मेरा सब काम खत्म होने के बाद मैं सब कुछ काम करूंगा। ऐसे ही करते हैं ना, अपना जो कार्य करने के लिए, मिशन के लिए जो आए हैं वो पूरा करेंगे पहले, फिर दूसरा काम करेंगे। ये भाई शाम की मेरी ट्रेन है, मुझे इतने बजे प्लेटफॉर्म पहुंचना है। लेकिन हम लोग यहाँ आते हैं, भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभम, वो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन हमारा समय हम दूसरे में गवा देते हैं। तो हमारा जो मूल उद्देश्य होता है हम भूल जाते हैं, जो हमारा मूल उद्देश्य हम भूल जाते हैं, और हमारा समय हो जाता है हम चले जाते हैं। इसीलिए कितनी तकलीफों के बाद हम अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं, और वो सब का सब यही डरा रह जाएगा, और एक दिन हम चले जाएंगे, कोई बचाएगा नहीं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कलकत्ता में एक व्यापारी वो डॉक्टर को प्रार्थना करे, मुझे कुछ समय दीजिए कि मेरा ये योजना बाकी, ये योजना बाकी है, सब योजना यही की रही रह जाएगी, एक क्षण भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए समय मत गवाओ, जो मिला है उसको भगवान की सेवा करो। कल का ही श्लोक था ना, वो कोटेशन ना गुरु महाराज का, कि समय गवाओ मत, वो भेजते ना राधेश्वर कोट भेजते गुरु महाराज का, तो कल का ही था ना कि समय मत गवाओ, करोड़ों सोना मोड़ देने से भी ये समय हमारा वापस नहीं आएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य इस जगत में आना है, भगवान की प्राप्ति करना है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बता रहे थे, वो बात चल रही थी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज एक कथा बताते हैं, एक बुढ़िया की कथा बताते हैं। नहीं, भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि किसी धनी व्यक्ति के पास जाके राख मांगना, जैसे हम मांगते हैं भगवान के पास मांगते हैं, ये सब मांगते हैं ना कि मुझे धन दीजिए, मुझे ये दीजिए, अच्छी नौकरी दीजिए, ये सब क्या है, बहुत बहुत धनी आदमी के पास जाके कुछ राख मांगना ऐसे है। भगवान सब कुछ दे देते हैं, लेकिन हम भगवान के पास जाके छोटी सी चीज मांगते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते, एक बुढ़िया की कथा बताते हैं। वो बताते थे कि एक बुढ़िया थी, गांव में रहती थी और जंगल में रोज जाती थी और लकड़ी काटती थी और लकड़ी लेके बाजार में बेचती थी। तो एक दिन जंगल में गई और बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली, सूखी लकड़ियां, और जैसे तैसे उसको बांधा
और अपने सर पे रख दिया। बहुत भारी वजन था, और रख के और लकड़ी का भारा लेके वो निकल रही थी। अब किसी कारणवश वो लकड़ी का भारा नीचे गिर गया और सबको पुकारने लगे। जंगल में कौन आएगा? सब लोगों को कोई मुझे मदद कीजिए, कोई मुझे मदद कीजिए, कोई मदद कीजिए, लेकिन कोई नहीं आता है। फिर वो भगवान को पुकारती है कि भगवान मुझे मदद कीजिए, ये मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए, कृपया मेरी हेल्प कीजिए। तो बहुत करुण भाव से प्रार्थना करते, तो भगवान उपस्थित होते हैं वहां पे। भगवान आते हैं सामने, बोले क्या चाहिए आपको? तो कहती है बुढ़िया कि वो जो ये लकड़ी का भार है वो मेरे सर पे रख दीजिए। ये लकड़ी का भार मेरे सर पे रख दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि हम भी ऐसा ही करते हैं। भगवान मुक्ति दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्या मांगा? ये भार मुझे दे दीजिए। और हम जो भगवान से मांगते हैं तो हम क्या करते हैं? जैसे प्रभु जी ने बताया कि खूब कमाओ, हाँ? तो कमाने से कौन सुखी हुआ है बताइए? कमाने से आप जन्म मृत्यु से बच जाएंगे, पढ़ाई लिखाई से आप जन्म मृत्यु से बच जाएंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे तो जन्म मृत्यु से बच जाएंगे। तो हमारा मुख्य दुख क्या है? हमारा मुख्य दुख है बार बार मां के घर में जन्म लेना। और भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो हम भगवान की शरण छोड़ के जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये करूंगा वो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आज तक कई राजा महाराजा आए और चले गए, पृथ्वी पे आधिपत्य जमाने जी के लिए, लेकिन आज तक कोई जमा पाया? पृथ्वी देवी हंसती है भागवतम में। कई राजा महाराजा, कितने महान महान राजा हो गए, हाँ? ये नेपोलियन बोनापार्ट कॉन्कर पूरा 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 पृथ्वी कॉन्कर करने को आया था, लेकिन वो जाते समय क्या बोल के गया? हाँ? वो बोला कि भारत आया, वो जीत नहीं पाया और चला गया, उसका मृत्यु हो गया एक मच्छर काटने से। तो उसने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। वो सबको बुलाता है कि कुछ समय के लिए मुझे जीवन दान दीजिए, नहीं दे सकता। तो उन्होंने बताया कि मेरे हाथ खुले रखना और जितनी भी धन संपत्ति मैंने कमाई हो सबको बांटना। मेरी जब अर्थी जाए, मेरा जनाजा जाए, तो ये बांटना कि लोगों को पता चले कि सिकंदर आया था, खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा है। इसीलिए ये भौतिक जगत में हम सुखी होने का जितना भी प्रयास करते हैं, कभी सुखी नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, वो धोबी का गधा होता है ना, उसको वो बोझ उठाने का काम करता है, तो धोबी क्या करता है? उसके आगे एक गाजर लटका देता है डोरी के ऊपर। आपने देखा होगा प्रभुपाद की पुस्तकों में वो चित्र है। तो क्या करता है? गाजर लटका देता है धोबी, उससे काम करवाने के लिए। इसी तरह माया देवी हमसे काम करवाने के लिए बोलती, ये अभी तुम सुखी हो जाओगे, अभी तुम सुखी हो जाओगे। गधे को लगता है कि अभी मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, ये गाजर खा लूंगा। और धोबी क्या करता है? उसको बाहर लेके जाता है, कपड़े धोता है और नदी किनारे जाता है और गाजर निकाल लेता है, फिर कपड़े धो देता है, वापिस वो रख देता है और वापिस घर तक लेके आता है। लेकिन वो गाजर नहीं खा पाता है। खाता है गाजर गधा? नहीं खा पाता है। वैसे ही हमें गाजर लटकाया हुआ है कि अभी हम सुखी हो जाएंगे, बस ये काम हो जाएगा, मेरा पुत्र का शादी हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा घर बन जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, कल मैं भक्ति कर लूंगा। लेकिन कल 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 हमारा समय खत्म हो जाएगा और हम एक दिन चले जाएंगे। कुछ समय के लिए हमारे घर वाले 2 3 दिन 4 दिन 10 दिन रोएंगे, फिर भूल जाएंगे, एक हार लगा देंगे, फिर पता नहीं आया था गया, आया गया, आया हो गेलो, बस इतना ही है। हाँ, तो पृथ्वी, हाँ, मनुष्य आज यहां लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के, प्रभु जी लिखते हैं,
संग प्राप्त, हाँ, भारत मतलब पृथ्वी के सारे खंडों में, हर ग्रह में, हर ब्रह्मांडों में भगवान की भक्ति तथा भक्ति योग प्रचलित है। और श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों में उसके वचन दिए गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? पृथ्वी के हर भाग में, हर खंड में भगवान की भक्ति होती है। और ऐसा नहीं है कि खाली इस्कॉन वाले हैं इसलिए हम लोग खाली कृष्ण की भक्ति करते हैं, नहीं, सारे ब्रह्मांड में भगवान की भक्ति होती है। भगवान के भक्त उनका नित्य गुणगान करते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंद में आता है, पता है किसी को? जम्बूद्वीप का वर्णन आता है, जम्बूद्वीप का वर्णन आता है। उनमें 8 खंड है जम्बूद्वीप के, इसमें एक भारतवर्ष भी है। तो उस खंडों में भगवान की भक्ति होती है, नित्य होती है। तो बहुत सुंदर वर्णन है। भाद्रवर्ष में अपितु उसका शासक भद्रसवा है तथा उनके अनुचर के साथ वो हयग्रीव, भगवान का एक अवतार है, हयग्रीव नाम है उनका, हयग्रीव की पूजा करते हैं वो। कौन से वर्ष में? भाद्रवर्ष में। ये अलग अलग 8 खंड है। हरिवर्ष की भूमि प्रदेश के में कौन करता है पता है? प्रहलाद महाराज किसकी सेवा करते हैं पता है? नरसिंह देव की। हरिवर्ष में सब अलग अलग वर्ष है। केतुमाल वर्ष में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के हयशिष भगवान की सेवा होती। कामदेव के स्वरूप में प्रकट होते हैं और लक्ष्मी देवी और उनके साथ सारे अनुचर उनकी सेवा करते हैं। अलग अलग वर्ष है। रम्यक वर्ष में मनु तथा सर्व निवासियों मत्स्य देव की सेवा करते हैं। और हिरण्य वर्ष में विष्णु भगवान कच्छप के रूप में, कूर्म के रूप में उनकी सेवा अर्यमा करते हैं। तो जो भगवान है ना, उनके सब रूप है वो कोई काल्पनिक नहीं है। उत्तर कुरु वर्ष प्रदेश में भगवान हरि की सेवा, हरि वराह के रूप में प्रकट होते हैं। तो वहां के लोग उनकी वराह स्वरूप में उनकी सेवा करते हैं। किम्बुर वर्ष में किसकी सेवा होती है? ये बहुत बार सुना भी है। हनुमान जी भगवान राम की सेवा करते हैं किम्बुर वर्ष में। और भारतवर्ष में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृष्ण की सेवा होती है। सार्वनी मनु भारतवर्ष के निवासियों पुरुषोत्तम परमेश्वर की सेवा करते हैं। ऐसे जम्बूद्वीप के 8 भाग हैं, उसमें सब में भगवान की सेवा होती है। और लिखा है कि भगवान की सेवा करने के लिए कोई ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। भक्त अपनी सभी इंद्रियों से पूर्णतः भक्ति गुणों में लगता है तो उसकी सफलता निश्चित है। भगवान की सेवा किसी भी वस्तु से, यहां तक कि सिर्फ साधारण वस्तु जैसे फूल, तो भगवान की भक्ति के लिए हम कुछ यहाँ सेंटर आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। हमें फूल लाना चाहिए, फल लाना चाहिए। मंदिर जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके जाना चाहिए। भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि हमारा छोटा बच्चा है, हमारे ही पैसे से चॉकलेट लेके आता है। पैसा हमारा ही है, हमसे कुछ पैसा लेके जाएगा आपका बेटा और आप एक चॉकलेट लेके आएगा, एक फल लेके आएगा। लेकिन वो चॉकलेट या फल खाने से पहले आपको देगा तो कि पापा आप खाइए, दादा आप खाइए, तो क्या करेगा? तो आप कितने प्रसन्न हो जाएंगे ना, बहुत खुश हो जाएंगे और आप उसको ज्यादा देंगे। ये बहुत अच्छा है। आप खाएंगे, वो चॉकलेट नहीं खाएंगे आप, ये मेरे बेटे के लिए है ना। ये फल आप नहीं खाएंगे, नहीं बेटा तू खा जा। उसी तरह भगवान को प्रेम से अर्पण करें। भगवान को जरूरत नहीं है, सारी चीज भगवान की है, लेकिन हम भगवान की सेवा में लाते हैं तो भगवान उसमें खाएंगे नहीं। भगवान लिखते हैं कि हम जो भगवान को अर्पण करते हैं वो भगवान खाते नहीं, मतलब खाते और पूरा रख देते। भगवान खाते हैं
लेकिन उसकी कृपा जो इसमें जो अनर्थ है वो सब ले लेते हैं और कृपा ले लेते हैं। उसी तरह जैसे हमारा बच्चा ने हमें प्रेम से ऑफर किया तो हम लेंगे और उसको वापस करेंगे, ला बेटा तू खा ले। उसी तरह भगवान हमें वाद से जीव लोग जीव भूत सनातन, हम भगवान का अंश है, हम कुछ लेंगे नहीं लेकिन हम वापस कर देंगे। इसीलिए हम मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए भगवान के लिए। मंदिर जाते कुछ फल ले जाना चाहिए, कुछ फूल ले जाना चाहिए, कुछ अच्छी चीज ले जानी चाहिए। मंदिर में किस चीज की आवश्यकता है तो भगवान की सेवा के लिए ले जानी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं साधारण वस्तु जैसे फल फूल पट्टियां या थोड़ा जल द्वारा जो संसार भर में सर्वत्र बिना मूल्य से उपलब्ध है उसकी की जा सकती है, भगवान की सेवा की जा सकती है। जैसे अभी सीजन आएगा, आम का सीजन आएगा तो हमें भगवान के लिए आम ले जाना चाहिए। फिर कुछ और सीजन संतरे की सीजन आती, संतरा ले जाना चाहिए भगवान के लिए। जो भी हम अपने घर में ले जाने से पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। कुछ भी नई चीज हमारे घर में आने तो सबसे पहले भगवान को अर्पित करनी चाहिए, भगवान के लिए ले जाना चाहिए। भगवान ब्रह्मांड भर के जीवों के द्वारा इसी प्रकार से सेवित है। केवल श्रवण कीर्तन या उनकी लीलाओं से पठन से पूजन से या उनके मानने से ही उनकी सेवा हो जाती है। अब भगवान के बारे में सुनते हैं तो ये भी एक सेवा है। उसकी लीलाओं का सुनना, उसकी लीलाओं को पढ़ना, उससे ही भगवान संतुष्ट होते हैं। हाँ, हम संतुष्ट होते कि नहीं होते हैं? कोई हमारी बात करता है तो कैसे ध्यान देके सुनते हैं ना, हाँ मेरी बात कर रहा है ना, हाँ अच्छी बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है, सुनते हैं ना। हम कहीं जा रहे हैं ऐसे बोल देते हैं, ओ महाभारत को इतनी सेवा करता है, हाँ मेरी बात कर रहा है, तो हम प्रसन्न नहीं। ये नेचर है, भगवान जो गुण भगवान में हो हमें भी। तो जैसे ही हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं भगवान भी सुनते हैं, ये भक्त मेरे बारे में बोल रहा है। भगवत गीता में कहा गया कि मनुष्य स्वकीय कर्मों के फल को अर्पण करके से ही भगवान की सेवा कर सकता है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह क्या कर रहा है। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। हम बिजनेस में भी जाते हैं तो हमें भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। सामान्य रूप से लोग कह सकते हैं कि वे जो भी करते हैं वह ईश्वर की प्रेरणा से कर सकते हैं, करते हैं। लोग बोलते हैं हम ईश्वर जाते हैं, हम भगवान की कृपा से, लेकिन भगवान के लिए सेवा मांगते हैं, नहीं 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 मेरे पास सब है, ऐसा नहीं। करनी जो हम बोलते हैं वो करना भी चाहिए। हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं ना तो कहते हैं सब कुछ कृष्ण की कृपा से हो रहा है, तो हम बोलते हैं कृष्ण की कृपा से लीजिए, भागवतम लीजिए, नहीं 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 अब मेरे पड़ता है नहीं, ऐसा नहीं, लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मनुष्य को वास्तव में भगवान के सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। भगवत गीता में बताया गया 9:27 में, यत् करोसि यदस्नासि यद्यु होति यदादि यस् यत् तपस्यति कौन्तेय तत्कुरु मत अर्पणम। जो तुम्हें अच्छा लगे या आसान लगे वही करो, जो चाहे सो खाओ, जो भी यज्ञ करो करना है वो करो, जो भी दान देना है वो दो, और जो भी तपस्या करनी है वो करो, किंतु प्रत्येक कार्य केवल भगवान के लिए करना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य करते हो या कोई नौकरी स्वीकार करते हो तो भगवान के हेतु से करो। जो भी खाओ वो भी भगवान को अर्पित करो और आश्वस्त रहो कि उसमें से भोजन को पाने के बाद वो तुरंत लौटा देंगे, भगवान खाएंगे नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमारा बेटा हमसे देता तो हम खाते नहीं है लेकिन हम वापस कर देते हैं, वो परम पूर्ण है। अतः जो भी भक्त द्वारा अर्पित किया जाता है उसे वे भक्त के प्रेमवश ग्रहण करते हैं, किंतु पुनः प्रसाद के रूप में भक्त को वो लौटा देते हैं। जिसके खाकर वो प्रसन्न रहे, दूसरे शब्द में ईश्वर के सेवक बनो और उसी भाव में शांतिपूर्वक रह कर अंत में भगवत धाम को प्राप्त करो।
इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान मेरी रक्षा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उनको पूर्ण विश्वास था उनके ऊपर। इसमें एक शब्द आता है कि मानसिकता से भी भगवान की सेवा कर सकते। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, रियल एग्जांपल। जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, विष्णुजन स्वामी या कोई क्या नाम है वो मैं भूल गया, तो वो सबको श्रील प्रभुपाद जी की बात पे पूर्ण विश्वास, प्रभुपाद ने बोल दिया मतलब फाइनल। सब महाराज जितने भी प्रभुपाद के जो डिसाइपल थे उस समय, तो उनके गुरुओं का पूरा फेक था। गुरु ने बोल दिया बस खत्म। तो उस समय प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भक्ति रसामृत सिंधु का अनुवाद कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं हो तो हमें मानसिक तभी से भगवान को ऑफर करना चाहिए। भगवान मानसिक से भी ग्रहण करते हैं और इसकी कई कथाएं भी हैं, लेकिन मैं रियल एग्जांपल बताना चाहता हूं। तो और यही बात प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कि जो भी खाओ भगवान को ऑफर करो। तो विष्णुजन स्वामी या कोई और महाराज थे, मैं अभी नाम मुझे पता नहीं, अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो वो सब डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो एक जगह पे स्टॉल लगाया, उसकी जो बसपा संकीर्तन पार्टी थी वो स्टॉल लगाया। तो कुछ कारण सर उनको पुलिस पकड़ के लेके गई सब भक्तों को। अभी भक्त लोग क्या करने वाले थे कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कहीं और एक मंडी था वहां, सॉरी लंदन में, हाँ लंदन मंडी में फिश था, संडे फिश होता था, वहां बहुत सारी आइटम बनती थी। तो ये संकीर्तन पार्टी वहां आई हुई थी। तो वो एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो वहां कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उन लोगों ने पुलिस को बुलाया और वहां से भक्तों को पकड़ के ले गए। और भक्त लोग सब उत्साह में थे क्योंकि भाई अभी आज संडे फिस्ट मिलेगा लंदन मंडी में या कहीं मंडी में आज संडे फिस्ट मिलेगा। तो वो सब उत्साही थे, पुस्तक वितरण करते थे और सब आज फिस्ट मिलेगा, क्योंकि उस समय पे मतलब संडे फिस्ट में बहुत सारी आइटमें बनती थी, बहुत सारी आइटमें बनती थी। तो वक्त थे कि आज संडे है, हम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वहां जाएंगे। अब हुआ ये किसी कारणवश के सबको जेल में डाल दिया। सब भक्त, पूरी संकीर्तन पार्टी भक्त को लेके गए। लेकिन भक्त प्रभुपाद लिखते हैं भक्त जहां भी होता है वहां खुश रहता है। तो वो तो जेल में थे, तो जेल में भी कीर्तन करने लगे। अभी सब भक्तों को उत्साह देने के लिए महाराज ने क्या किया कि भाई हम आज फीस बनाएंगे जेल में। कहां फीस बनाएंगे? जेल में फीस बनाएंगे। अब जेल में तो क्या होता है, कुछ सामान तो होता नहीं है। तो वो एक भक्त को बोलता है हम आज 56 भोग बनेगा, फीस्ट बनेगा, संडे फीस्ट खाएंगे। तो वो जेलर सब बैठे हुए थे और वहां क्या पता था कि ये लोग सब मतलब मेंटली होते, ऐसा उन लोगों को लगता था कि क्या धोती पहनना, सर मुंडवा देना। वहां उस समय वो जब शुरुआत के दिनों की बात है ये सब, क्योंकि एक वो जो देवानंद की पिक्चर भी आई थी ना, डम मारो डम, और सब बोले ये सब ऐसे काम करते हैं, ऐसा उनके मन में था। तो बोले ये सब थोड़े मेंटली होते हैं, साइको होते हैं, मतलब ऐसा समझते थे वो लोग, वहां के लोग। तो महाराज को तो जहां भी रहते हैं, भक्त जहां भी रहता है वो भगवान की सेवा में नित्य आनंद मत रहता है। तो महाराज ने बोला उनको कि हम आज फीस्ट बनाएंगे, संडे फीस्ट है, सब फीस्ट बनाएंगे। तो वो तो लग गए। एक भक्त कुकिंग कर रहा है कुछ नहीं, मतलब मन से मतलब कर रहा है, जाता है गैस चालू करता है, पानी गर्म करता है, पानी गर्म करता है, एकदम सब्जी काटता है। तो वो जो जेलर वो सब देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं लोग, मतलब हरे कृष्ण कर रहे हैं और कुछ काट रहा है कुछ सब्जी बना रहा है, फिश बना रहा है, चावल बना रहा है और कीर्तन कर रहा है, कोई पूरी बेल रहा है। हाँ, सब मानसिक वो सब कर रहे हैं, मतलब सब एक्टिंग ऐसे देख रहे थे, एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन वो उनको ये भाव था कि हम भगवान का भोग लगाएंगे, 56 भोग करेंगे और फिश खाएंगे। तो वो सब झेला देख रहा है कि 1-2 घंटे से ये लोग क्या कर रहे हैं। वो जो थे तो वो सब देख रहे हैं क्या कर रहा है। जा रहा है किचन में, जा रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है। और एक भक्त बोला जल्दी बर्तन साफ करो, ये लगाना है अभी।
भगवान के लिए जल्दी करना है, ये चावल बनाओ, ये करो, वो करो। वो जेलर देख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सब पागल है क्या, ये सब कर रहा है। और सब 56 भोग तैयार हो गए 2 घंटे में, मतलब पूरी फीस तैयार हो गई। और एक मन से ही लगा रहा है, बोले थाली आ गई, भगवान को भोग लगाएगा, आरती कर, ऐसी घंटी बजा रहा है और भगवान को ऑफर करने का श्लोक बोल रहा है। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, वो भोग है, बोले सबको बांटना है। बोले पहले जेलर साहब को दो। तो एक बात आके उसको बोलता है, जेलर साहब ये लीजिए 56 भोग यार, भगवान का हमारा प्रसाद है। बोले बट पागल, सबको छोड़ो, ये सब पागल को कहां लेके, ये सब चलसी है, निकालो इसको। तो सबको छोड़ दिया उसको, बोले सब पागल को क्या भर दिया यहाँ पे, निकालो निकालो, ये सब पागल को लेके आ गए हम लोग गलती से। तो वो सब क्या सोच रहे हैं, पागल है ये सब पागल है। और सब भक्त कीर्तन करते करते निकल गए और वहां मंदिर जाकर फीस्ट किया। ये भगवान की कृपा है। और वो क्या समझ रहा है, ये सब पागल है तो पागल समझ के सबको छोड़ दिया। ये सत्य घटना ईश्वर की शुरुआत के दिनों की। और प्रभुपाद जी ने बोला कि आप मन से भी ऑफर कर सकते, तो उन्होंने मन से बनाया, मन से ऑफर किया, भगवान ने ग्रहण किया और भक्तों को दिया, तो भक्तों को वही फीस खिलाया, समोसा कचौड़ी ये सब बनाया। तो वो बोल रहा है जेलर को, बोले कचौड़ी है, समोसा है, बोले क्या पागल है तो ये बात है। तो भगवान कुछ खाते नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों की मैं रक्षा करता हूं। तो भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन हमें फेथ होना चाहिए भगवान, हमें फेथ नहीं है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। यदि हमें विश्वास होगा ना तो भगवान पूरा करेंगे। इसीलिए हमें बार बार इसको पढ़ना चाहिए, और पढ़ेंगे तो भगवान में फेथ होगा। देखिए हम शादी करते तो हमें उतना प्रेम नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे उनके साथ संबंध बनाएंगे तो हमारी पत्नी के साथ में प्रेम होगा, बच्चों के साथ प्रेम होगा। तो भगवान के साथ हम भगवान की बातें सुनेंगे, भगवान की लीला सुनेंगे शुद्ध भक्तों के द्वारा, तो हमें उससे प्रेम होगा। द्वारिका में उन्होंने सुना नहीं था, रुक्मणी ने भगवान को देखा नहीं था, लेकिन नारद जैसे भक्त वहां आते थे, शुद्ध भक्त, और उनकी कथा सुनते थे, तो सुनने के बाद उनसे प्रेम हो गया उनको, रुक्मणी को प्रेम हुआ, तब उनसे व्यवहार करते हैं। तो हम जब तक भगवान की लीलाओं को सुनेंगे नहीं, तब तक हमें प्रेम नहीं होगा। लेकिन कथा दर से नहीं सुनना चाहिए, जो पैसे लेके कथा करे उनसे, वो नहीं शुद्ध भक्त पीयूष पाएगा, इसलिए वो डायरेक्ट दशम स्कंद की कथा करते हैं। लेकिन जब शुद्ध भक्तों से हम सुनते हैं तो भगवान से तो प्रेम होगा हमारा, ओ भगवान इतना महान है, भगवान ने ये कार्य कर दिया। इस्कॉन में आने से पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था कि कौन है भगवान, ठीक है, लेकिन जब सुनते हैं, ये सब पढ़ते हैं, ओ भगवान इतने महान है, तो भगवान से प्रेम होता है, भगवान से आदान प्रदान होता है। तो 9 बज गए हैं कथा को यहाँ विराम देता हूं। कल लास्ट दिन है, कल लास्ट पर्पट पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट्स? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।